بالفارسیات، یعنی کہ فارسی میں جو کلام ہے، اور ایک ہے کخ کخ، یعنی کہ جس میں وہی نا، کھجور وہ تو منہ میں کھانسی ڈالے والا تو ہے نا، وہ کھانسی والا ہے، وہ میں نے اسی ہاں، میں ایک مانتا وہ ہوں۔ ہے، ایک وہ ہے اشکمت درد ہے، یعنی کہ راوی کہتا ہے کہ فارسی میں فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے۔ اچھا، یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ میں باب الصلاح شفا 3458۔ ٹھیک ہے، چلے اس کو میں چیک کر لوں، 3458۔ ہاں چلے، کیا کل بات ہے؟ کوئی بھائی لگا دینا، چیک کر لیتے ہیں، کوئی بھائی لگا نہیں، دیتے چیک بات کر لیتے ہماری اور ہے نا، بات اور ہے، بات جہاں پر قرآن نے یہ کیا الفاظ بیان کیے ہیں، تفسیر صغیر کھول کر دیکھ لے ذرا کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ نہیں، شرح میں یہ بیان کیا گیا ہے، شرح میں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے جیسے کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، تو وہ فارسی تھے، تو ان کے بھی بہت سے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے اپنی زبان میں جب بولتے تھے، تو عربی بولتے بولتے وہ اپنے ملک کی زبان بھی بیچ میں الفاظ ادا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ بالکل ایسے ہی، وسلم نے بھی ان کے الفاظ بھی دہرائے ہیں، ان بالکل کے ایسے ہی ہے۔ الفاظ بھی دہرائے ہیں۔ ایک حدیث ہے، تو وہ پھر وہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ کے جن کو استعمال کیا جاتا تھا اس وقت، یعنی کہ اگر کوئی صحابی رسول وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹاتے تھے وہ سوال۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم تو لیکن وہ دلیل ساتھ دیتا ہے کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب اس کی دلیل وہ دوسری ایک اور دیتا ہے، دلیل کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت، جیسے کہ اونٹ کی زبان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لی، درخت نے بولا ہے تو درخت کی آواز بھی اور زبان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اسی طرح خطوط آتے تھے تو خطوط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک نظر سے دیکھتے تو پتہ چل جاتا، جیسے کہ گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے اندر زہر ہے، تو وہ دلیل دیتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جمیع انسانوں کے لیے آئے کائنات قیامت تک کے لیے، تو لہٰذا الہام کا دوسری زبان میں ہونا کوئی اعتراض نہیں بنتا، یعنی تو کہ قرآن اگر کو بھی مرزا قادیانی، قرآن کی صرف سارا عربی میں ہے، سوال تو ہمارا یہ ہے سارا قرآن ٹوٹل الحم سے ون ناس تک سارا عربی میں کیوں ہے؟ وہ قرآن کی دلیل بناتا ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی بھائی یوحی۔ اب یہ دلیل جو ہے نا، یہ تو وہی کے بارے ہے نا، یہ تو وہی کے بارے ہے نا۔ نہیں، حدیث بھی تو وہی ہے، حدیث بھی تو وہی ہے، وہ تو وہی کے طریق اللہ نے فرما دیے ہیں نا کہ وہ کس طرح وہی اللہ تعالیٰ مختلف پردے کے پیچھے رشتہ بھیج کر یا وہی کر کے جو ہے وہ اس طرح وہ تین طریقے موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں بات کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتراض ہم کریں، یہ تو بنتا ہے کہ بھائی یہ حدیث کہاں پہ جو مرزا قادیانی نے جھوٹ بکا ہے تو اس کا اچھا، حوالہ دو، یہ اعتراض تو ہو گیا ویلڈ۔ ایک ٹھیک ہے ہو کہ گیا۔ ایسی وہی ہونا کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ ہو، تعلیماً جیسے حدیث قدسی ہیں وہ بھی تو وہی ہے، تو ایسی وہی ہونا کہ جو قوم کے لیے خاص ہو اور سمجھانا ہو مقصود ہو وہ اسی زبان میں ہو، لیکن عام روٹین میں جب کوئی الفاظ بولا جائے جس کا جس کا جو یعنی کہ لنک تعلیم کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روز مرہ کے جو دوسرے ممالک کے، جیسے کہ ابھی فارسی کے بارے میں بتایا کہ وہ استعمال ہوتی تھی تو اسی استعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، تو اس کو بھی ہم وہی کے اسی الفاظ میں تو اگر نہیں ہے لیں نا نا، وما ینطق، سوال یہ ہمارا کہ یہ کیا نبی کریم کے یہ وہی کے الفاظ ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے ایک کیس آیا تھا، تو انہوں نے اس پر کہا کہ فلاں مرد سے شادی کر لو، اس عورت نے ان سے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، وہ کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے تو سارا آنکھوں پر، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے آزادی ہے۔ اس عورت نے، اور نبی کریم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، اس عورت نے نہیں شادی کی تھی۔ اب یہ بات اب دیکھیں وہی نہیں کے اندر بھائی، تھوڑی نہ آتی۔
वो ठीक है बात है, लेकिन वो कहलवाने वाला तो अल्लाह ही है ना। कि वो जो भी कहते हैं भाई ये वो बात है ही नहीं अल्लाह ना, की रजा। दुनियादारी के मामलात में है ही नहीं ना, दुनियादारी के मामलात में है ही नहीं है ये यही तो सिर्फ मैं दीन कह के रहा हूँ कि मामले जो में है बस। तालीमन है ना, जो तालीमन बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो तालीमन बात है ना, वो तो खास हो गई तालीम के साथ। लेकिन रोजमर्रा की जो, अब नबी सल्लल्लाहु ने ये जो फरमाया कि दुनिया के मामले में तुम जानो। अब मुहद्दिसीन इमाम जो मुल्ला अली कारी हैं, वो फरमाते हैं कि ये भी वही के साथ खास है, कि वो हुज्जत है उम्मत के लिए। कि आज भी हम दुनिया का कोई काम करते हैं ना, तो कोई हमसे पूछा कि ये क्यों करते हो, इसके ऊपर कोई हुक्म, कोई मुआवजा, तो हम कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए हुक्म मौजूद है, और ये हमारे लिए हुज्जत है और दलील है कि हम दुनियावी नहीं मामला आप करते हैं बात ना, तो समझे उसके नहीं ना ऊपर। यार अपना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नबी करीम की जुबान से पैदाइश से वफात तक हर लफ्ज आप वही मानते हैं? मेरा सवाल है हल्का आपसे। नहीं नहीं, हर पैदाइश नहीं, लफ्ज ऐलान उनकी जुबान से, नबूवत। ऐलान नबूवत से ऐलान वफात तक नबूवत। हर लफ्ज जो कुछ उनके मुंह से निकला उसको वही मानते हैं? मेरा एक ही मैं तो सवाल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की यानी कि हर वक्त निगरानी में, और जो बोलते थे वो भी अल्लाह की जो होता है ना कि मुकर्रर कर देता है अल्लाह ताला, और दिल में डालता है बात अपने अंबिया के, औलिया के। तो अगर वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई करते भी थे ना, तो वो भी निगरानी में, अल्लाह की निगरानी में ही करते थे, और वो भी इल्हाम या जो दिल में डाला गया उसको कंसीडर किया जाएगा, उसी वही मैंने जो कंसीडर बात किया पूछी जाएगा। है ना कि हर लफ्ज चाहे वो उसकी वही है, बिल्कुल तकरीबन वही है, दीनी मामलात से हो, दुनियावी मामलात से हो, जो भी बात है, किसी से बिल्कुल मजाक वही है, किया है, किसी से कोई बात की है, किसी से हाथ से मुखातब हुए हैं, जितनी भी बातें जो भी लफ्ज निकले आप उसको वही तस्लीम करते हैं? बिल्कुल मैं वही तस्लीम करता हूँ। ठीक है। और ये मेरा नहीं मौक़िफ़ नहीं है, ये मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, और जितनी भी शरह पढ़ी हैं उनमें यही मौक़िफ़ है। चले मैं चेक कर लूंगा मुहद्दिसीन ने क्या लिखा हुआ है इस मौके पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उनको पढ़ें या फिर इमाम राजी को पढ़ें, तो ये तो उनका भी मुफसरीन है ना, मौक़िफ़ यही है। मुफसरीन में से है ना। हम रईसुल मुफस्सिरीन भी हैं, लेकिन उन्होंने शरह भी जो है ना, वो हदीस की शरह भी लिखी है, कई जगह पे मुकाम पे उन्होंने इसके ऊपर कलाम किया हुआ है। फिर आप चेक इमाम कर इब्न लेंगे, हजर चेक अस्क़लानी चेक कर लूंगा। मैंने तो जमहूर का मौकफ लेना है। दो बंदों को एक तरफ, 15 बंदे एक तरफ, दो बंदों को मैं जमहूर का मौकफ लूंगा, दो बंदों का नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जमहूर का मैं जमहूर मौक़िफ़ का आप मौका लूंगा। अगर किसी ने लें। लिखा भी हो ना तो मैं अपने ये चीज देखनी है कि जमहूर का मौकफ क्या है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी, हाँ, उसकी शरह आप पढ़ सकते हैं, हदीस आपको कोई ऐसी मिले ना, तो एक होती है तालीमन बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वाइड। अब जैसे कि कोई ये कहे कि देखो कि बाहर के मुल्कों से लोग आते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी जुबान में कलाम किया, अच्छा इस पर यानी मेरा कि एक सवाल है। यही जो हदीस जिसका हम बादशाहत जिक्र के कर रहे मूड थे में। खजूरों वाली, एक बात सुने ना, ये जो खजूरों वाली हदीस थी आपके मुताबिक क्या नबी करीम ने वही अल्लाह ही से फरमाया था उनको कि खजूरें इस तरह काश्त करो? बिल्कुल बिल्कुल, मुल्ला अली कारी, वही तो मैं बता रहा हूँ, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये तो मुझे ये अल्लाह बताया के ना कि ये हुक्म। वो वही से फरमाया था। बिल्कुल वही से बताता फिर हूँ, वही गलत तो मैं निकली बता रहा वही, हूँ। फिर वही गलत निकली। नहीं उसका ना, काश्त करने पर वो वही मैं वो चीज हासिल नहीं हुई वही जो तो होनी मैं चाहिए बताने थी। लगा हूँ। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये दलील बन गई है उम्मत के लिए, कि अगर वो मान लेते सहाबा, अगर वो मान लेते तो बेहतर यही था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात मानते। लेकिन ये दलील बन गई उम्मत के लिए कि दुनियावी मामले में मुआखजा नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा दुनियावी मामलात में, अगर तो आप लोग चलेंगे ना, तो उस पर नहीं मुआखजा बात नहीं सुने है। ना मेरी, मान लेते क्या जी जी। मतलब भाई साहबा ने मानी थी या इनकार किया था? नहीं, उसको कंटिन्यू रखते ना, लेकिन वो शिकायत करते हैं आगे। मैंने जो बात पूछी है ना वो ना ये ना बताएं, ना। उस वक्त नबी करीम की बात साहबा ने मानी थी या इनकार किया था? बिल्कुल माननी थी। मानी थी, नतीजा क्या था? नतीजा जो अल्लाह ने चाहा कि नतीजा ये निकले, और फिर ये जो नहीं मैंने जो बात पूछी है गलत अभी बात है, गलत बात, गलत बात, गलत बात है। हाँ यही तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ये बिल्कुल नजरिया ही गलत गलत है। बात हर लफज की बारे वही कर रखना, ये नजरिया गलत है। जमहूर का मौका मैंने आज तक नहीं पढ़ा ये है। किसी एक बात ये है इनफरादी कि बंदे अल्लाह को ताला का कलाम, अगर अल्लाह ताला ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान किया, तो कैसे गलत हो सकता है? इसमें से अपनी यही तो तो जी मेरा सवाल निकालनी है। बनी कि अगली बार करते, ये गलत है अच्छा, बिल्कुल बात। यानी कि इसका मतलब ये हुआ फिर जिया भाई, मामला ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से भी कुछ अपनी तरफ से कुछ फरमाए, ये वो तो गलत हो हदीस गया। मुबारक भी मौजूद है ना।
नबी मशवरा पाक हाँ, लेने तो का अब क्या मजमू मकसद है फिर? नहीं जब नहीं नहीं साहबा से एक मेरी बात मशवरा सुने लेते ना। हैं तो क्या मकसद है? जब साहबा के मशवरे मे- पर नबी करीम खुद अमल करते हैं तो फिर मेरी ये तो मेरी मानना बात पड़ेगा सुने जो ना, बात साहबा को आई है वो भी वही है। मेरी बात सुने ना। बात मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जो नहीं, उनको मुल्ला अली कारी नुकसान तो हुआ ना, हुज्जत नहीं है ना। वो मैं यार नहीं मुल्ला नहीं तो अली कारी अगर शरह कहते किसकी हैं तो पढ़नी है नबी आपने? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद शरह फरमा किसकी दिया पढ़नी कि है? जो बात मैं वो जो है वो आपके कहूँ कि नजदीक अल्लाह की नुकसान तरफ है से ना, वो अल्लाह की वो तरफ से है। आपके नजदीक नुकसान है ना, वो आपके नजदीक नुकसान है, असल में वो हमें नुकसान नुकसान नहीं है। नबी करीम ने क्या फरमाया उसके बाद, उस वाक़े के बाद नबी करीम ने क्या फरमाया है वो क्या बताएं। यही फरमाया? यही क्या फरमाया? यही फरमाया था कि जो मैं बात कहूँ शरीयत में, दीन में, वो तुम ले लो उसको, लेकिन दुनियावी मामले में तुम जानो, दुनियावी मामले में तुम जानो, ठीक है। अब मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अगर वो हमारे नजदीक नुकसान आप कह रहे हैं ना, वो नुकसान नहीं है, वो तो उनका फायदा था। मुल्ला अली कारी ने खुद लिखा हुआ है कि अगर वो ये काश्तकारी का जो करते थे, कलम, वो कलम लगा के काट के, वो उसी पे कायम रहते हैं तो वो फायदे में रहते और इस मुश्किल से बच जाते। नबी भाई ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका बात अपना इत्तेहाद 100% है, ठीक मुल्ला है। अली कारी का ये अपना इत्तेहाद है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो इसके बरक्स है। नहीं ना बरक्स, ये तो नुकसान उन, देखे ना, वो तो दुनियादार, यही तो यानी बात है कि ना। एक यही तो बंदा बात है सोचता ना है कि कि ये मेरा नुकसान है, असल में वो अब मुझे नुकसान नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है इस पर कि बात तो वही की थी आपके मुताबिक, फिर बिल्कुल आप वही कह के रहे हैं कि वो मुताबिक बात जी। वही की थी यार और जो वो इंसान उस जी पर हुई सोचता है नहीं, ना फिर वो क्यों, वजह अपनी क्या है? तरफ से, जो इंसान सोचता है कि ये सही होगा, कुरान पाक में भी यही है कि इंसान अपनी तरफ से जो सोचे कि ये तो ठीक है मेरे लिए, तो हो सकता है उसके लिए ठीक है, वो अपनी तरफ से है। लेकिन जो बात वही से बताई जाए वो इंसान अपनी तरफ से तो नहीं ना सोच रहा। तो असल में वो नुकसान नहीं था ना, यही तो फरमा रहे हैं कि अगर वो उसको बर्दाश्त करते, उस चीज को लेते और नहीं, उसी उस में वो वक्त की फायदा बात होता, है वो कि वाकया है ना, इस उसके मेहनत से बाद बच जाते, सुने तो सही ना, उस सुने तो सही ना, मेहनत से बच जाते। बाद का क्यास को छोड़ें, जो वक्त हाजिर मामला हुआ तो उस पर बताएं। बात अगर वो वही की शिकायत थी तो देखे ना, गलत क्यों हुई? देखे ना, वो शिकायत लेकर ही क्यों आए, जबकि उसी में फायदा था, उसी पे रहते वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम ने जब पूछा है कि फरमा नबी दिया। करीम ने जो उनको तरीकाकार फरमाया था आपके मुताबिक उन्होंने उस पर अमल किया, जो रिजल्ट निकलना था वो निकला नहीं, जी जी। तो आप जो ये कहना रिजल्ट चाहते हैं कि निकलना नबी, था। आप ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नुकसानदेह निकली थी उनके लिए? भाई दुनियावी मामलात है ना, दुनियावी मामलात हैं, ये तो दुनियावी मामलात है ना। ओहो, आप बताएं कि फिर गलत बात निकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने क्या कहा कि दुनियावी मामलात हैं। मैं समझाता हूँ आपको, आप मौकफ दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत निकली थी। किस कौन सी बात? एक मशवरा था नबी यही करीम वाली बात, अलैहिस्सलाम का, और यही क्या वाली था भाई? बात। उन्होंने मशवरा दिया है, दुनियावी, बस इतनी सी बात मैं है। वही कह रहा हूँ कि दुनियावी मामलात में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फिर गलत निकली थी, आप ये जो मानते हैं? बात मैंने पूछी, मैं जो हदीस में लिखा हुआ है भाई वो मानता हूँ। वो आपके मुताबिक शिकायत, दुरुस्त निकली थी या गलत निकली थी? हदीस में नबी करीम ने मैं तो क्या बता, फरमाया, हदीस में खोल मैं के चेक कर हदीस की लेते हैं। शरह बता रहा हूँ कि गलत नहीं निकली। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि वो गलत नहीं निकली, आप कह रहे हैं गलत निकली। भाई नतीजा क्या निकला था साहबा के सामने, मैं तो वो पूछ नती रहा हूँ ना, मुझे वो बता दे। वो शिकायत देखें, वो सहाबा शिकायत लेके आगे नहीं लेके आनी चाहिए थी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं उसी में उनका फायदा था, वो बात सही थी नबी की, लेकिन जब वो शिकायत लेके आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात उम्मत के लिए हुज्जत बन गई कि हदीस तुम लगाए जो है वो चेहरा को छोड़े, दुनियावी हदीस मामला लगाए, में हदीस तुम में क्या जानो। लिखा हुआ है? मैंने पूछा हदीस मुझे बताएं कौन सी हदीस है, जरा नंबर चेक कर लूं मैं, उस पर क्या लिखा हुआ है। दीगर आप शवाहिद भी मजमुआ, है ना, शहरी एक शवाहिद। हदीस नहीं होती, एक हदीस से रिजल्ट नहीं निकलता। जो मुहद्दिसीन है उन्होंने मजमुआ या हदीस को इकट्ठा किया होता है, किसी में कुछ अल्फाज पूछे हैं, भाई किसी में अल्फाज दुनिया पूछे के हैं। वाहिद मुहद्दिस मुल्ला अली कारी साहब ही हैं, आप दुनिया के वाहिद मौकफ मुहद्दिस मुल्ला दें, अली कारी साहब ही हैं। नहीं नहीं, आप अल्लामा इब्ने मैंने कहा ना अस्कलानी कि मैं उठा के चेक कर देखो। लेता हूँ ना कि एक मौका आपको हाँ आप निकाल लें। मुल्ला अली कारी के अलावा किसी और का नाम आप नहीं ले। इकरार करें नहीं भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह ये बात गलत भाई मैं निकली, खुद पढ़ आप लेता अगर हूँ ना, आप मैं मान खुद लें, पढ़ लेता हूँ वहां पर मान लें। क्या है। मैंने हालांकि क्या कहा जब कि मैं खुद पढ़ लेता हूँ वहां क्या लिखा हुआ है। पढ़े 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 जरूर पढ़े 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 जरूर पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं निकली थी। सहाबा जो थे यार उन्होंने आप उसको, लोगों को इस हदीस शरीफ के अल्फाज अगर आप देखें ना जाके, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ इनको। पता चल जाएगा कि असल में इसमें वो बात है ही नहीं। इसमें जो बात है वो इल्म गैब से मुतल्लक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नहीं देखता इसमें कोई फ़ायदा, यानी वो गैब के मुतल्लक बात है। तो गैब तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के बताए के बगैर नबी भी गैब नहीं जानता।
جی تو اس میں تو اتنی ہی بات ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں فائدہ ہے، مجھے نظر نہیں آتا، یعنی مجھے نہیں پتا. اب صحابہ کو اسی میں فائدہ نظر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں فائدہ نظر. اب صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا اسی میں فائدہ ہے. بات نہیں کس کی صحیح صحابہ ہوئی؟ کرام جو ہیں، دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں. پیغمبر جو ہے وہ تو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں نہ بولتا. جب تو اللہ پھر تعالیٰ نے صحابہ نبی کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی صحابہ جی کا تو اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ دونوں کا معاملہ ہے نا. پھر نبی بغیر وحی صحابہ کے کو نہیں بولتا. عام انسان جو ہے وہ تو صحابہ اپنی طرف کو سے کیا سرائی کرتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو یہی سکتی بات ہے نا کہ صحابہ کو وہ ماننی چاہیے تھی، وہ بات اسی پہ قائم رہنا چاہیے تھا، اسی میں فائدہ تھا کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دیا اسی پہ رہتے. لیکن چونکہ انہوں نے وہ اس پہ قائم نہیں رہے اور وہ شکایت لے کر آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بات امت کے لیے دلیل بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط نکلی بات، معاذ اللہ. اگر نہیں. ہم غلط والی مجموعہ بات ہی احادیث کو نہیں آپ ہے اس میں، نکالیں. غلط نکلنے والی بات ہی نہیں ہے، غلط نکلنے والی بات اس میں ہے ہی نہیں. نہیں وہ انہوں میرے نے بھائی یہ کہہ رہے تھے نا فرمایا کہ رزلٹ کیا میں نکلا. نہیں دیکھتا، اس میں کوئی فائدہ میں نہیں دیکھتا، یعنی غیب کے علم کی بات ہے، تو بات تو غلط آگے ہی پڑھے ثابت نا، ہوتی آگے ہے. پڑھے صحابہ نے کیا آگے پڑھے اپنا عثمان بھائی کیا دیکھا، کیا کیا تھا صحابہ یار نے اس پھر؟ میں ایسے نہیں، اپنے ایسے طریقے نہیں، پر رہے تھے یا چھوڑ دیا تھا ایسے نبی نہیں، کریم کے طریقے ایسے پر چل نہیں، پڑے ایسے تھے؟ ایسے نہیں. مجموعہ احادیث سے ہم وقت لے لیں میرے ساتھ. یہ جو آپ نے میں لگائی ہے نا، اس تمام پر ایک حل کر لینا، ایک حل کر لینا. نہیں نہیں یہ نہیں، جو ہے سامنے لگی ہوئی ایک ہے. حدیث سے نہیں رزلٹ نکلے گا. مجموعہ حدیث مجھے وقت دیں، کل میں فری ہوں، اسی موضوع پہ بات کر لیں. میں شرح بھی آپ کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھا دوں گا، اور دوسرے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کال پڑھا دوں گا اس کے اوپر. اور یہ تو اتفاقی بات ہے یہ جو لکھا محدثین ہوا ہے، کے یہ جو پہلے نزدیک. پڑھا ہے نا، جو لگایا ہوا ہے اسکین آپ نے، اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ اتنا بریک ہم سے اور یہاں سے پڑھا نہیں جا رہا. میں ایپ کو نہیں مانتا. میں یہ وابیوں کا ترجمہ نہیں میں مانتا. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث نمبر کون سا ہے ذرا نکالنا. نہیں بھائی، حدیث نمبر کون سا ہے؟ زیا بھائی میں یہاں سے نہیں پڑھ سکتا، اسکرین شاٹ جس نے لگایا شعیب راجہ ہی بتا سکتے ہیں میرے کو. عثمان بھائی یہ کون سا حدیث نمبر؟ نہیں ضیاء بھائی مجھے نہیں پتا اس وقت نا، میں پھر جاب پہ ہوں، تو میں پھر موبائل بھی ایک ہی ہے میرے پاس. چلو دیکھتا ہوں لسٹ. ہاں اس کو مجموعہ حدیث ہے نا، ہم دیکھ لیں گے. میں تو اس کے اوپر پوری تحقیق رکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جو ہے نا، وہ آج کل کے لوگوں کے مختلف نظریات بن چکے ہیں. لیکن ماشاءاللہ جب آپ چلے اس آیت کی محدثین تفسیر کو میں دیکھ پڑھتے ہیں لیتے ہیں نا کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس آیت کی جب تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں نا آپ کیا بات اس کے اندر آتی ہے. اس میں نہیں بھائی ہر دیکھیں لفظ جی آتا ہے ذرا. یا زیارسل بھائی، یہ بات اس آیت کی وحی تک ہے نا، قرآن کے دیکھیں نا، آیات تک ہے. اس پہ دیکھیں اندر نہیں بھائی، موجود ہے، حدیث نہیں موجود بھائی ہوں گی. دیکھیں، آپ دیکھیں نہیں بھائی دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فلاں فلاں جو کافر ہے یہ یہاں پہ مرے گا. اب وہاں پہ وہی کا تو ذکر نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ میں بات کہتا ہوں، وہ وہیں پہ کفار یہ تو مرے ہیں. خبر ہے نا، یہ تو خبر ہے نا، یہ تو خبر ہے. میں بتانے لگا ہوں، میں بتاتا ہوں وہاں پہ وہی کا ذکر نہیں ہے. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا، اب یہ بھی امت کے لیے ایک تعلیم بن گئی ہے، حجت بن گئی ہے. میں نے ایک بندہ تھا جو بندی، اس سے میری ڈبیٹ ہوئی آج سے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، اور اس نے یہ کہا کہ حجت نہیں ہے. حجت کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ نبی کی بات حجت نہیں ہے. کون سی بات؟ دنیاوی معاملات میں. میں نے کہا شرم کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہر بات ہی حجت ہے. لیکن تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے دنیاوی معاملے میں، تو یہی بات ہمارے لیے دلیل ہے. آج ہم دنیاوی معاملات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو لے کر تو یہ حجت مان کے تو ہم چل رہے ہیں. نہیں تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے بتائیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے معاملات اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا دلیل ہوگی؟ تو ہم یہ دلیل پیش کریں گے، یہ حجت ہے ہمارے لیے تو ہم پیش کریں گے. وہ کہتا ہے حجت نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر جو نا میری سب کی تحقیق ہے. مجھے وہ اب تو میرا ڈیٹا اڑ گیا سارا، ضیاء بھائی کو پتا ہے میرا.
तो उसकी वजह से मेरा डाटा ही उड़ गया। मैंने तो ये बहरहाल मुहद्दिसीन को पढ़ पढ़ के नया मौका ये मैंने पहली दफा सुना है, ये मौका जो आपने पेश किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का दावा नबूवत से लेकर वफात तक हर लफ्ज हुज्जत है, हर लफ्ज वही है। बिल्कुल अल्लाह की निगरानी में ही नबी सल्लल्लाहु ने फिर वो तमाम की तमाम तालीम में, अल्लाह की तालीम में वो अच्छा मेरा एक निगरानी में सवाल है, गुजारे हैं। मेरा एक जी सवाल जी है, एक सवाल है मेरा आपसे कि नबी करीम का हदीस के अलावा भी बाकी जिंदगी में वो अकवाल भी मौजूद नकल हैं कि ये पूरी जिंदगी की ये नबी करीम के दावा नबूवत से वफात तक हर कौल नकल मौजूद है, हर कौल जो नहीं लफ्ज ऐसा उनकी नहीं, जुबान मुबारक से अदा हुआ है वो मौजूद नहीं है या नहीं ऐसा है? नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। ये एक तो मिनट फिर एक मिनट मुख्तलिफ एक मिनट यार भाई मुझे बताने देने, हाँ हाँ देखिए वो मुख्तलिफ और फिर ये है बातें या निकल नहीं है? आएंगी। नहीं नहीं हम इसका दावा ही नहीं कर सकते। नहीं है नहीं, फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो हर कौल हुज्जत वही होता तो वो नकल होता लाजमी, नहीं अल्लाह का नहीं हुक्म होता है वो नकल होना लाजम है। जो अल्लाह ने चाहा वो हम तक पहुंच गया, मुहद्दिसीन तक पहुंच गया। जो भाई अल्लाह ने मैंने जितना जो चाहा बात पूछी है कि अल्लाह का कलाम है तो फिर तो मचाना नबी का, ये तो नबी करीम हजरत अम्मी आयशा की रवायत है। यार अगर कोई कहे कि जो हजरत कुछ अल्लाह ताला ने बताया नबी करीम ने उसमें से कुछ छुपा लिया तो हजरत सच झूठा हुज़ैफा है। कहते हैं, मेरी बात सुनो, हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें मुझे बताई और ऐसे ऐसी कि मुझे ना बताने का भी हुक्म हुआ है। तो ये भी मशीयत इलाही में ही है शामिल। आपको यानी कि जितना जो इल्म बात मैंने पूछी है ना अपना बात सुने ना, हम्म, कि ना बताने वाली बात तो फिर आ जाती है, गलत हो जाती है। बात जो मैंने की है उसका बताएं कि जो अकवाल नबी करीम अलैहिस्सलाम के नहीं दर्ज हो सके आपके मुताबिक वो हुज्जत हैं, उन मामलात में रनवाई कहाँ से लेंगे जो दर्ज ही नहीं हो सके? वो उसी हवाले इंतजामी से अमूर पहुंच गई है अलग ना सारी चीज बात। है, ये बात ध्यान में रखें। सारी बात पहुंच इंतजामी चुकी है अमूर ना हर वक्त बदलते हैं। भाई। इल्मे लुदन्नी के बारे में है कि बहुत सी ऐसी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, वो भी तो वही के तायद के साथ ना, वो नहीं पहुंचाई। ये मशीयत लाई है। बहुत सी ऐसी बातें हदीस हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की, वो फरमाते हैं मुझे बहुत सी राज की बातें बताई हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे अभी कत्ल कर दो। तो वो कहाँ है वो बातें? यही वो तो बातें सवाल है कहाँ हमारा, हैं? यही तो हमारा तो सवाल है ना। फिर आप कहते वो हैं जो हर बात राज ने, वही है अच्छा तो फिर छुपाई तो जाती नबी, है। हाँ नबी सल्लल्लाहु आज खुद तो कुछ कहते नहीं है। अब वो वही की तायद से कही थी ना, तो वो बताने बताने से मना किया। अगर गैब खुद से जानते होते तो फिर वो ना कहते, वो अल्लाह की भाई तायद मेरा से क्या सवाल सकती इसी है। पर है ना, उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे कि जो बातें नबी करीम को अगर वही के जरिए बताई गई हैं आपके जी मुताबिक, और अम्मी आयशा का कौल जी है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने बताया नबी करीम को, तो कोई शख्स कहेगा तो नबी ये करीम भी ने उससे कुछ छुपा लिया है तो ये भी तो वही तो हो, वो आप शख्स ये भी झूठा है। मान लेना। मेरी बात सुने ना, ये भी तो वही है ना कि कौन सी बात छुपानी है और कौन सी रखनी है। ये भी तो वही के साथ ही है ना, मशीयत लाई है। कौन सी यानी कि अल्लाह, कौन सी अगर अल्लाह बात है? ताला, अल्लाह की तायद हासिल हो और अल्लाह की मशीयत हो कि नबी सल्लल्लाहु को ये खबर दे दी जाए कि ये बता दिया जाए, ये ना बताएं, तो वो भी तो वही हुई ना। मैंने जो बात पूछी है ना भी जो बात बता, यही तो इसी पर सवाल है ना कि जो कुछ अल्लाह ताला ने बताया नबी करीम को वो बता कर दी। तो हजरत हुजैफा को वही की तायद के बारे से गैब की खबरें जो दी थी वो वही से दी थी या अपनी तरफ से दे दी थी? नबी करीम तो बता कर गए हैं ना, नबी करीम हुज़ैफा को बता कर तो गए हैं ना। तो आपने कहा उम्मत को क्यों नहीं बताई, वो कोर्ट क्यों नहीं हुई? मैंने कहा है कि जो शख्स के नबी करीम को अम्मी आयशा की रवायत है कि जो कुछ अल्लाह हजरत ताला ने हुजैफा उन्हें ने बता बताया दी थी। उन्होंने उसको जाहिर नहीं फरमा, अच्छा फिर हजरत उन्होंने अपने हुजैफा से वक्त अल्लाह साहब ताला जो ने बात क्यों, उन्होंने बतानी थी वो बताई है। हजरत हजरत नबी करीम हुजैफा बता से कर अल्लाह गए ताला ने, हैं। नहीं नहीं नहीं, भाई इस हजरत पर यह हुजैफा नहीं ने, बात आती कि नबी करीम ने कुछ पाया है। हम्म, हाँ, हजरत अच्छा हुज़ैफा को हजरत बता कर हुजैफा गए हैं। से, अब ये लाजम नहीं है कि आप हमें अच्छा ये नहीं बता कह सकते कि वो वही आई है तो बता कर छुपा कर गए हैं। अच्छा नबी करीम अल्लाह को का वही वो जो नाज़िल हुई है तो वो फरमान है, छुपा कर गए हैं। अच्छा मुझे ये ये तो बताएं कि इसकी अल्लाह नसूस के की, खिलाफ है, ये अच्छा मुझे ये कुरान तो की नसूस बताएं के ना, खिलाफ है ये और चीज। नहीं खिलाफ, नहीं खिलाफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अल्लाह अल्लाह जो है वो अपना कलाम सब तक पहुंचाता है कि नहीं? वो फिर वो क्यों नहीं पहुंचाया कौन सा जो हजरत कौन सा हुजैफा को कलाम? बताया था?
क्यों मैं हजरत हुज़ैफा को आप बताया? वही तो साबित करें, यही तो मसला है ना कि हम हर बात को वही मानते नहीं है, आप हर बात को वही मानते हैं, ये हमारे दरमियान बुनियादी तनाज़ा होता है। वो भाई वो तो मैं मुहद्दिसीन नबी कह रहे करीम हैं के ना, वो हर इल्म। लफ्ज को जो, ओहो, मुझे ये भाई ये बताएं तो कि इल्म की हजरत बात हुज़ैफा नहीं होती, को, अकीदे में इतनी हजरत जड़ें मैं नहीं हुज़ैफा निकालता को हूँ, छोटी जो गैब बात की अकीदा खबरें नसूस से चाहिए हजरत होता है। हुज़ैफा को जो गैब की खबरें बताई थी, वो ये कहाँ अपनी लिखा हुआ तरफ से उन्होंने गैब बताई की थी खबरें या अल्लाह बताई की? हैं? मैंने ये पूछा ये कहाँ लिखा हुआ गैब की खबरें उनको बताई गई हैं? अच्छा, वो आप वो दुनियावी बातें बताई थी, जो कह रहे थे मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा अगर मैं मैंने बताऊंगा। पूछा कि नहीं गैब की खबरों का दावा आपने किया, ये कहाँ नहीं लिखा हुआ भाई, है? इससे नहीं 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 भाई, इसमें से तो यही साबित होता है कि वो ऐसी बातें थी जो आम लोगों को मालूम नहीं थी। अगर मालूम होती तो हजरत हुज़ैफा ये तो ना कहता है कि मैं आपको बता दूं तो आप मुझे कत्ल कर दें, वो तो उनको ऑलरेडी मालूम होती। भाई जो बातें ज़ाहिर रसूल भाई ये है ना कि उनका तल्लुक अगर वही से है ना, तो फिर बात हमें आयशा की हदीस उठलानी पड़ती है, समझ गए? देखें, इज्तिहाद हर एक का है, इज्तिहाद हर एक का है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताई हैं। वैसे मैं कलाम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो हम बात करेंगे, सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो उनका अपना इज्तिहाद भी था, ठीक है, लेकिन जो सहाबा जो दुनियावी यानी कि बाहर रहते थे और सरकार से मिलते थे, उनका कलाम और है, सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कलाम और है, इज्तिहाद था उनका, वो क्योंकि घर में रहती थी। तो इस तरह जो है ना वो बहरहाल हमारे अ, दरमियान बुनियादी बात जो ये आई है ना, ये तो आगे बात चलती है तो बढ़ती जाती है कि बुनियादी मामला है। बिल्कुल आपका बिल्कुल दावा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दावा नबूवत से, जो था मैं समझाऊँ, वफात तक जो कुछ ऐलान भी नबी नबूवत करीम की ज़ुबान अतर से अदा हुआ है, दावा नबूवत या ऐलान नबूवत जो कह लें, चले ऐलान वो नबूवत अल्लाह बोल की लेते हैं, ठीक। तायद से हुआ, अल्लाह की ऐलान तायद के नबूवत कलाम से, है। ऐलान जी नबूवत से लेकर वफात तक जी, जो लफज भी, एक लफज हो, चार लफज हो, जिस मौके पर भी, भले वो महफूज है नहीं है, वो सब कुछ वही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अल्लाह दिल में जी बात डालता है ना, उसको भी हम वही से ताबीर करते हैं, इल्हाम वली के लिए और नबी नबी के लिए उसको वही कहेंगे। तो जो दिल में भी बात डाली जाती है ना, वो अल्लाह की मशीयत से डाली ये जाती आपका थी, दावा है, और ठीक वो हो वो गया। मामला बिल्कुल भाई मेरा दावा मैंने है। सुन लिया ना, मैं तहकीक कर लूंगा इस पर क्या है। बिल्कुल मेरा दावा है। इस फशरीन का, मुफसरीन का, मुहद्दिसीन के क्या अकवाल हैं, वो जमहूर का मौकफ क्या है? एक आदम शारा मुफसर का नहीं, जमहूर का मौकफ, जमहूर जी जरूर जरूर। एक आध अच्छा दो की बात हो उस्मान, जाती नहीं होती, जिस पर उस्मान भाई असल इतफाक टॉपिक की होता है तरफ आओ मुहद्दिसीन ना, का। मीर सलीम वाली गल की तरफ आओ, असल टॉपिक है यार। आमिर भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई ये लगाई है मिर्जा कादियानी ने जो कहा था ना, ये मुस्तफ़ा करा करना बाखुशम के कनम, ये नबी सल्लल्लाहु को फारसी में इल्हाम हुआ। कहते हैं ये उसमें पढ़ा हुआ है कादियान रबवा की लाइब्रेरी में, इसका इस किताब का भी नुस्खा और हवाला। तो आगे बात चला रहे थे हम कि दलील दे रहा है ये मीर सलीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में फारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस पर बात हो रही थी। नहीं, ये वो कह रहा है कि ये किताब रबवा के लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसमें वो इल्हाम, क्या किताब का नाम है? वो है कौसर नबी बाबुल फा बाबुल वफा है, पता नहीं बाबुल फा है, किसकी लिखी हुई है? पता नहीं, आगे हवाला कोई नहीं। हाँ, ये जो सामने लिखा हुआ है, ये हदीस किताब कौसर नबी बाबुल वफा में है, जो कादियान के कुतुब खाना में मौजूद है। ना कादियान दी फैक्ट्री च हदीस घड़ी गई सी, किताब भी उत्थे पई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ਇਹ ਤੇ पहले ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। नहीं, ये गल अगे पुरानी है, मशहूर है, लेकिन ये कि कई बारी जेर बहस ज़्यादा नहीं ना आਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਸਰ ਨਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ जी जी, लिखा हुआ है, हदीस की किताब है। ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ये नहीं बताया, ये मीर सलीम से पूछे हैं, उसने लगाई है पोस्ट। देखो ना,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਖਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਸਰ ਨਬੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਕੌਸਰ ਨਬੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਸਰ ਨਬੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੌਸਰ ਨਬੀ ਲਿਖਿਆ ਅਮਨ ਭਾਈ। ਕੌਸਰ ਨਬੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬੁਲ ਵਫਾ, ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੁਲ ਫਾ। ਬਾਬੁਲ ਫਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਮਜ਼ੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ, ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਆਇਤ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਚਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਵਲੀਦ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਲੀਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਐਮਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਝਟਪਟ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਸੰਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਜਰਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਆਇਤ ਨਾਲ, ਅਲ ਯੌਮ ਉਸ ਆਇਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋ? ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉੱਜਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਜਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਕੌਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਦਾ ਕੌਲ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਤਣਾ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੱਟਣਾ ਝਟਕਣਾ ਝਟਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਮਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਮਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੇ ਆਮਦ ਦੀ, ਕਤਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ ਪਈ ਤੇ ਐਮਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਜ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਜ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਤਰ ਨਬੂਵਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1899 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1902 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਤਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਸਾਦਮ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਣ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਰੰਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 2-3-4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਐਮਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਬੂਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲਾਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਐਮਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਹੈ ਜਵਾਬ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮਾਲਾਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨਬੂਵਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਫਤਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਕਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਤਲਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਗਲਤ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਤਾਬਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੌਲਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੇ,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਧੰਮਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਮਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਨਸਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ 500 ਰੁਪਈਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ, ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਈਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 400 ਨੂੰ 500 ਨੂੰ 1000 ਉਹਨੂੰ 15,000 ਉਹਨੂੰ 10,000। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਐਮਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸਫਾ ਨਾ 89 ਸਫਾ 22ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦਾ, ਰੌਨਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 22ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ ਨਾ, 22 ਜਿਲਦ, ਉਹਦਾ 89 ਪੇਜ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਜ਼ਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਤਰਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੰਮ ਰਵੇ। ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਆਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਲੇ 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 ਗੇੜਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਮਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਢਲ ਜਾ। ਇਹ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਢਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਢਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਨਾ ਢਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਢਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਢਲ ਗਏ ਬਸ ਛੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਢਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਢਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਢਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੇਰਾ ਢਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੁਥ ਸਰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो शायद वो सुनने में ना, आप क्योंकि मैं कुछ और सुन रहा था, आप कुछ और सुन रहे थे ना, उसके अंदर उसका जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उसके पास ना बहुत सारे सवाल जवाबात हैं। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ वो एक और ब्रॉड पे बैठी होती है हमारे मुसलमानों की, तो वो उसके पास बहुत सवाल होते हैं ना अपने मामले के लिए भी।
उसको कोई ऐसा फोरम नहीं मिल रहा था जहाँ पे जाके वो कुछ चीज़ें ऐसी भी समझ सके जिस पे उसको इस्लाम के कुछ मामलात जो अहमदियों ने शकूक व शुबात है जिसके ऊपर वो समझ दिया कि ये बातें गलत हैं। वलीद भाई ये बात ना करें ना, ये बातें मैंने यही कहा कि ठीक है। उनके अंदर के जो मसाइल हैं ना कई, वो हम बयान करेंगे तो फिर उनको मौका मिलेगा उसकी इस्लाह का। वो मसाइल को रहने दें, वो जहाँ पड़े हुए हैं ना, वो हमें भी पता है कि वहाँ पर जो मसाइल चल रहे हैं, अगर हम वो बयान करेंगे, वो हमारी बात सुन के फिर जाके उनको टच करेंगे मसाइल को, तो टच नहीं करने रहे, उनको पड़ा रहने दो उधर। मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है आमिर भाई, बस ठीक है फिर, मैं अच्छा किया, बस हाँ मैं माजरत मेरी, मुझे अब नहीं पता था इस बात मैं का। उतरा भी इसलिए हूँ कि वो जो बंदा नीचे कालें डाल के कह रहा था ना मेरी काल चुको बुजदलो, वो तो खैर मैंने बाद में देखा है, मुझे नहीं पता था कि वो नीचे आया हुआ है। वो आपके बाद आया। हाँ, उस तरह के बंदे जो है ना, उनके और इन लोगों यानी मोतदिल मिजाज और इन लोगों के दरमियान जो मसाइल चल रहे हैं ना, उनका तकाजा ये था कि मैं फिर जो मैंने बात करनी थी वो कर ली, पीछे हट जाऊं, उनको खुद भी तो सोचने का मौका देने। वो कौन से यार पट्टे खाते हैं, वो भी तो इंसान है, उनको भी तो पता है ना कि हाशिया पूरा नहीं पड़ा। इसीलिए वो कितना लंबा लेक्चर कमालत ने दिया, उसको सुन के उसने इसलिए सिर्फ मैं, एक तरह बोला उस बच्ची ने, उसने कहा ये हाशिया तो पूरा पढ़ दें। हाँ हाशिया जी, पढ़ना नहीं उसने तो उसने तो आमिर भाई आपके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था, वो जो एक ये नज़म नहीं पढ़ते, मुझे तो नहीं वो भी उसका पता था, लेकिन वो वो, भी मुझे पता है। वो मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, हाँ मोहम्मद जी, जिसने अकमल गुलाम अहमद को दे बता दिया। मैं वो नज़म मुझे पता है, मैं सुन रहा था वो हाँ नीचे जी, उतर आया था लेकिन मैं सुनता रहा हूँ। तो बात ये है कि ये तो उनके लिए ये जो ब्राड है ना इस तरह की, जहाँ जहाँ पर सवाल हों, सवालों के तो जवाब नहीं है। अगर सवालों के जवाब उनके पास हों तो वो क्यों जिद करें कुरान से हमने बात करनी है, कुरान से बात करें, कुरान से भी नहीं कुरान से। वो भाई इन सवालों के तो जवाब हैं नहीं। ये जो है ना, ये जो नीचे से आया था, इस तरह के जो है ना हॉक्स, वो इन ब्राडों को चाहते ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि इस तरह की ब्राड लगे या कोई सवाल हमसे पूछा जाए। ये सवाल ठप्पे रहने चाहिए, बस ये कहना चाहिए ये मसीह मऊद हैं, ये कुरान से साबित है, ये देखो ये कुरान में आया है, नबी आ सकता है, बस ठीक है। किताबों को और किताबों के ऊपर जो हमारी लेपाप होती है उसको लोगों के सामने आने ही नहीं देना। अगर सवाल करेंगे लोग तो इतना तजाद है, इतना तजाद है, उस तजाद को कोई हल करके दे सकता ही नहीं। उनको भी इदराक है इस बात का, इसलिए वो उन हॉक्स के और वो जो मोतदिल मजाज लोग हैं उनके दरमियान हमें अपने वजूद को बीच में वो बना के नहीं पेश करना चाहिए कि वो दोनों में से एक को चूज करें। बात समझ गए ना? इसलिए मैं उतर गया था। और वो नहीं जो नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। उनको मौका असल देना में हाँ चाहिए, जी, वो उनको सही मौका कह रहे देना हैं आप। चाहिए कि वो गौर करें, देखें कि यहाँ पर क्या है। तजाद ही तजाद है। अब वो कमालत जो जवाब दे रहा था उससे खुद एमजी मुतमिन नहीं है। इतनी बार एमजी अच्छा, ने कहा कि ये दोबारा पढ़ लें भाई, ये पढ़ लें, पढ़ के जवाब दे लें भाई, छोड़ दें इसको, पढ़ के जवाब दे लें। ये जवाब नहीं है आपसे जो पहले अमल। भी इस तरह ही हुआ है। हाँ, शार्प शूटर ने ऊपर आके सवाल किया खत्म नबूवत के ऊपर ना, वो नहीं तो बना। नीचे साथ उनके वो नासिर भाई बैठे थे। अब नासिर भाई वही सूरत अहजाब की 40 नंबर आयत से सब कुछ बंद किए खड़े हैं, और कमलात भाई, कमलात उसी आयत से कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, इसी आयत से शरीयत वाले नबी बंद हो गए हैं, बाकी खुल गए हैं। हम्म और वो सूरत नाम की तरफ जा रहा है, वमन युतिल्लाह व रसूला, और ये सूरत नाम की तरफ कमलात भाई गए ही नहीं। हम्म और मैंने भी ये बात पेश की, फिर मैंने तो साथ, मैंने कहा खुद बोलने से बेहतर है कि ताहिर अमजद भाई बैठे थे, मैंने कहा जी ताहिर अमजद साहब ने पूछो, इनके सामने ये रखी थी आयत, तो इन्होंने आगे से क्या जवाब दिया था। तो वो ताहिर अमजद साहब ने भी 2-4 मिनट बोला, वो भी फिर नीचे टले हैं। उनकी तो खैर ये ब्राड ही नहीं है ना, उनकी तो ये ब्राड हाँ ही नहीं जी, है। उनके नजरियात ही अलग हैं। हाँ जी, लेकिन कहने का ये मतलब, आपस में हाँ तजाद बहुत है इनका। हाँ हाँ, इतना तजाद है कि अगर वो सवालों के जवाब के लिए सिर्फ ऐलान करवा देंगे तो ऐसे होगा जिस तरह पाकिस्तान कोई बंदा मस्जिद में ऐलान करवा देता है कि आ जाओ देग पक्की है, ले जाओ अपने अपने लिए चौल, तो वो स्पीकर लाउड स्पीकर से नीचे नहीं उतरता, तो वो देग सारी फारग हो जाती है। बल्कि दूजी का मुतालबा शुरू हो जाता है,
कि दूजी ले आया तो खत्म हो गई। मतलब लोगों को तो भूख लगी हुई है इन सवालों के जवाब, इन सवालों के जवाब मांगने के लिए ही तो हम कभी वो दरवाजा जंजीर लाते हैं, कभी वो दरवाजा धक्का देते हैं, दरवाजा खोलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। तो सवालों के जवाब ही तो हैं नहीं। अगर ये उन्होंने एक नशिस्त शुरू की है, उसके लिए एक कोशिश की है ना, तो उसको हमारे जैसे हॉक्स को जाके वहां पर खराबी नहीं पैदा करनी चाहिए, बल्कि इसको थोड़ा सा चलने देने चाहिए, ताकि वो सवाल कुछ ना कुछ होते रहें। सवाल होंगे तो लोग गौर करेंगे ना। यानी आप कहना चाहते हैं पोले पोले सवाल करें हैं? हाँ, अब आप बड़ा सख्त सवाल कीता ने सानू कहंदे हो पोले पोले सवाल का। अच्छा नहीं, मैं करके उतर आया ना, ये करना चाहिए। सवाल सख्त कोई ना होना सवाल चाहिए। पर बहस नहीं करनी चाहिए, हाँ, अब हम पैदा करके आ जाएं बस। सवाल इतना ही काफी होता है कि उसका जवाब उसके खुद बंदे समझें कि ये जवाब वो नहीं है जो बंदा सवाल पूछ के गया। बस आपको जरूरत नहीं है कि आप झगड़ा करें वहां पे और कहें तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ कहने की जरूरत ही नहीं है। सवाल खुद बोल के बता देता है कि ये सवाल और है, वो जवाब और है। अच्छा, जो आखिरी मसला था वो जो नज़म का, जिसके मैं बस इसके बाद माइक फ्री करता हूँ, वो जो नज़म वाला मसला था, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान, वो वाला नज़म वाला मसला, उसमें इतना तजाद है, उसमें इतना बड़ा मसला है कि मैंने नीचे लिख कर सवाल दिया। मैंने कहा अर्जेंट सवाल है एमजी साहब, मैंने दोबारा कॉल पे चुको, फिर अर्जेंट सवाल आ गया। अगर ये जो ये कह रहा था, सलीम मीर कह रहा था कि ये हज़रत मसीह मौद ने उनके सामने ये अशार पढ़े गए हैं और काजी ज़हूर अकमल तब तक ये पढ़ता रहा है जब तक ये लाहौरियों ने खाम खा ड्रामा किया है, वो तो ये नज़म पढ़ा करता था। तो इसका मतलब ये है, इसका मफहूम ये है, इसकी तशरीह ये है कि नबी पाक के दौर में इल्म नहीं उतना, ये इल्म जो 14वीं की चांद की तरह रोशन हो गया वगैरह वगैरह। भाई अगर ये इसकी ये ऐसी दुरुस्त तशरीह है जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें कोई गुस्ताखी नहीं पाई जाती ना आपके नज़दीक। जबकि आपके खलीफा ने असेंबली में ये कहा था, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, असेंबली की कार्रवाई मौजूद है, आपके खलीफा ने कहा था कि ये इतने गुस्ताखाना अशार हैं, अगर हमारे मसीह मौद के सामने पढ़े जाते वो काजी ज़हूर अकमल को जमात से निकाल देते, किक आउट कर देते। उन्होंने अखबार पेश कर दिया या बख्तियार ने, उन्होंने कहा ये लो अखबार अल फजल 1944 का अगस्त 1944। अच्छा, ये फतवा ना माने असेंबली वाला तो फिर क्या करें अमर भाई? असेंबली कार्रवाई को मानते ही नहीं है, ये जाली है वगैरह इस तरह की बातें। नहीं, ये नहीं कह सकते। मैं माना नहीं कहें तो बुनियाद फर्जी तौर पर मैं फर्ज कर लें इसको, अगर कहें तो फिर क्या दलील है? फिर भी मैं सोच लांगा कोई मौलवी नु आवाज मार लांगा, कोई ले आवेगा ना पिछे कट के वाला। कोई पिछे मौलवी को ले आया कोई नहीं। अच्छा, वो ना आमिर भाई उसके अंदर तो वो इंशाल्लाह कल तक पेश करूंगा, थोड़ी सी अधूरी है। उसके अंदर तो वो उसके अंदर तो वो फिलपति मीर सलीम यहाँ तक चला गया था कि मैं भी उधर ऊपर ही बैठा था, पर वो मतलब पता था कि मैं बोलूंगा तो वो बोलने देंगे नहीं। वो तो इस हद तक आगे चला गया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्लाह दीन की तकमील ही मसीह इसने की है, मिर्जा साहब ने की है। तो मैं हैरान था ये बातें सुन के कि ये बातें वो मतलब कर रहा है और सब सुन रहे हैं। खुतबा लामिया है ये ना, असल में वो अरबी में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। खुतबा लामिया का तर्जुमा पढ़े ना तो बड़ी बातें हैं उसमें। वो यही वो कह रहा था कि ये शेर जो है ना, ये खुतबा लामिया की तशरीह है। असल मसला ये है, वो सलीम मीर सही कह रहा था कि असल में ये शेर जो है ये खुतबा इल्हामिया की तशरीह है, लेकिन वहाँ पर खलीफा जो है ना वो कह रहा है कि नहीं ये शेर गुस्ताखाना है। अगर हमारे खलीफा को हमारे मिर्जा साहब को पता चल जाता, उनके सामने पड़े जाते, वो इसको छितर मार के जमात से निकाल देते काजी ज़हूर अकमल को। नहीं आमिर भाई, जो ये बात कर रहा था सलीम मीर के मिर्जा साहब के सामने ये अशार भी पढ़े गए हैं, तो ये पढ़े गए थे उनके सामने कि ये सलीम मीर जो कह रहा था वो गलत कह रहा था कि जो असेंबली में मिर्जा नासिर ने कहा है वो गलत कहा है। नहीं, इसने सही कहा है, सलीम मीर ने सही कहा है
अच्छा मिर्जा नासिर ने झूठ बोला असेंबली में। वो तो ओके, मतलब अखबार से मिर्जा मुकर साहब के गया ना, सामने पढ़े गए हैं। वो तो अखबार से ही मुकर गया ना, जब उन्होंने कहा ना कि आपके मसीह मौद के सामने ये शार पढ़े गए हैं, तो वो कहता नहीं पढ़े गए। उन्होंने कहा भी सबूत पेश करते हैं। जब अखबार अल फजल पेश किया गया ना, तो उसके पसीने छूट गए। उसने कहा ये अखबार अल फजल हमारा है ही नहीं। और स्पीकर असेंबली ने कहा ये कार्रवाई बाहर जाएगी, लोग क्या कहेंगे, अखबार अल फजल आपका नहीं है? कहता नहीं मेरा नहीं है। उसने कहा आपका नहीं है, आपकी जमात का। कहता तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अखबार उनका है, तो वो लिखते रहते हैं, जो उसका दिल करता है एडिटर लिख देता है। उसने कहा भाई आपकी इजाजत के बगैर कैसे लिख सकता है, या आपकी मनहज के खिलाफ बात कैसे लिख सकता है। उसने काजी जहूर अकमल का 2 दफा इंटरव्यू शाया किया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। एक मेरा ख्याल है कौन सी तारीख है, 8 अगस्त है 1944, दूसरी 22 है। मेरे पास स्कैन पड़े हुए हैं दोनों के ना, वो दोनों वहां पर स्कैन मौजूद हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ही, वो 2 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर, वो 2 इंटरव्यूज के छपे हुए हैं काजी जहूर अकमल के। उसको तो नहीं ना पता था कि ये बाद में असेंबली में पहुंच जाना सबूत। वो तो लाहौरियों को खामोश करवाने के लिए, क्योंकि वो मौलवी मोहम्मद अली इतराज करता था इस पे, तो उनका मुंह बंद करने के लिए काजी जहूर अकमल ने कहा कि ये मिर्जा साहब के सामने मैंने ये अशार पढ़े थे, अखबार अल बदर में छपे थे, 6 अक्टूबर 1906 का अल बदर अखबार, उसमें ये अशार छपे थे। मसीह मऊद ने मुझे जज़ाक अल्लाह का शरफ बख्शा था। ये अशार सुनकर मुझे जज़ाक अल्लाह का शरफ बख्शा था। अब ये है मुसीबत उसके लिए। ये अल्फाज जो है ना, ये उसके लिए मुसीबत है, क्योंकि वो तो कह चुका है कि भाई अगर मसीह मौद के सामने पड़े जाते तो वो इसको छितर मार के निकाल देते। अब वो मुसीबत के आगे फंस गया, तो उसने कहा अल फजल अखबार ही मेरा नहीं। इसने पता नहीं कहाँ से इसका इंटरव्यू शाया कर दिया है काजी जहूर अकमल का। इसको इसका जो दिल करता है ये लिखता रहता है। इसका मतलब है सलीम मीर बात ही कर रहा था, असेंबली में बात गलत हुई है। हाँ हाँ, उसने झूठ बोल के जान छुड़ाई है वहां से भाई। वो कह रहा अखबार ही मेरा नहीं है। उत्ते आके गल दसो जी अदनान मतलूब साहब, मैंने जो गुमराह किया है ना, आके इसलाह करें, लोगों की गुमराही से बचाएं लोगों को। यार नस्ल इंसानी को अगर मैं गुमराह कर रहा हूँ तो आप आके लोगों को बचाएं। ऊपर तशरीफ लाए, मैंने आपको इनवाइट किया। सलीम मीर सही कह रहा था कि ये मिर्जा साहब की तालीम है। असल बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये इतने गुस्ताखाना अशार हैं कि इनको सुन के ना मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, पहले तो जब मिर्जा साहब जब तक जिंदा रहे ना, हाँ जी। तब तक तो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी वगैरह जो थे ना, उन्होंने भंग पी हुई होती थी ना, उनको होश नहीं होती